Hi students, welcome to my YouTube channel name and Guru. And in this lecture we are going to see the plain topic for MHTC. इस लेक्चर में हम प्लेन टॉपिक के सभी फॉर्मूलेज डिस्कस करेंगे and after this lecture we will solve the important problems for MHTC also. So students, if you are new to my channel, please subscribe my channel and please hit the bell icon so that you will get the notification of my new uploaded videos. So चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्लेन फॉर MHTCT and we are going to discuss all the important formulas for topic plane of MHTCT. So first formula is vector equation of plane in normal form. वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का वेक्टर इक्वेशन क्या होता है? सो सी स्टूडेंट्स, इफ दिस इज अ प्लेन and if I draw perpendicular to this plane from origin, I have drawn up, this is the plane and a perpendicular is drawn from origin to the plane and this perpendicular to the plane is called as the normal. Any line which is perpendicular to the plane is called as the normal. So this is the normal to the plane from origin. If the unit vector along this normal is n cap, if the unit vector along this normal is n cap and length of this perpendicular is p, then equation of this plane, then vector equation of this plane in normal form is r bar vector dot n cap vector equal to p. So n cap is unit vector along the normal and p is the length of the perpendicular of the plane from origin. And r vector क्या होता है? What is r vector? r vector is position vector of any point on the plane. इस प्लेन पे किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है. n cap क्या है? यूनिट वेक्टर along the normal. p क्या है? p is the length of the perpendicular from origin. So here n cap is unit vector along normal, from origin. And what is p? p is length of this perpendicular to the plane from origin. So this is the normal form of the equation of the plane r vector dot n cap equal to p. r bar dot n cap equal to p. p is the length of the perpendicular from origin. n cap is the unit vector along the normal from origin. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है फ्रॉम ओरिजिन से. उस परपेंडिकुलर की लेंथ क्या है? p. और उस परपेंडिकुलर पे यूनिट वेक्टर क्या है? n cap. सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन नॉर्मल फॉर्म. अब इसी इक्वेशन का हम कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे. कार्टेशियन इक्वेशन यानी नॉर्मल फॉर्म के दो इक्वेशन होंगे, एक वेक्टर इक्वेशन, अनदर कार्टेशियन इक्वेशन. सो इसी इक्वेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसा कन्वर्ट करेंगे? लेट p be any point on the plane. यहाँ पे r वेक्टर इज यूनिट, r bar is any point on the plane whose position vector is r bar. So let p x y z be any point on the plane. प्लेन पे हम कोई भी एक यूनिट p पॉइंट कंसिडर करेंगे, उस कोऑर्डिनेट्स आर x y z, लेकिन उस पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर क्या है? r बार. सो ये r वेक्टर बन जाएगा xi प्लस yj प्लस zk. ओके, सो दिस r वेक्टर इज xi प्लस yj प्लस zk, क्योंकि मैंने p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या कंसिडर किए? x y z, दैट इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन. नाउ दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन. ओके, सो लेट LMNR डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या है यहाँ पे? OM
नॉर्मल क्या है, OM, दिस OM इज नॉर्मल टू द प्लेन। इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या कंसिडर किए मैंने, LMN। सो लेट LMN आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल OM टू द प्लेन। तो हमने डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज में देखा था, किसी लाइन के डायरेक्शन रेशोज अगर LMN होते हैं, देन यूनिट वेक्टर अलोंग दैट लाइन इज Li plus Mj plus Nk। सो यूनिट वेक्टर अलोंग OM, यूनिट वेक्टर अलोंग OM, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल क्या है, n कैप। सो दिस n कैप विल बिकम what, Li plus Mj plus Nk। अब मेरा वेक्टर इक्वेशन यहाँ है, इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमें कार्टेशियन फॉर्म मिल जाए। सो r बार डॉट n कैप इक्वल टू p। तो मेरा r वेक्टर क्या है, व्हाट इज r वेक्टर, xi प्लस yj प्लस zk डॉट n कैप वेक्टर क्या है, व्हाट इज n कैप वेक्टर, li प्लस mj प्लस nk इक्वल टू दिस p। एंड बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट x इंटू l lx प्लस y इंटू m my प्लस z इंटू n nz। तो मेरा कार्टेशियन फॉर्म बनेगा lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। ओके, तो नॉर्मल फॉर्म वेक्टर इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म इज r bar dot n cap इक्वल टू p and Cartesian equation in normal form is lx plus my plus nz इक्वल टू p where LMN क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल। LMN क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। एंड व्हाट इज दिस p, व्हाट इज दिस p, दिस p is what, this p is what, length of the perpendicular to the plane from origin। so this is the vector equation of the plane in normal form। नेक्स्ट फॉर्म हम डिस्कस करेंगे, इसमें एक नोट भी हमको देखने की है। वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस, वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट, प्लीज नोट दिस नोट, प्लीज नोट दिस इम्पॉर्टेंट नोट। अब देखिए, दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, दिस इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे लिख सकते हैं। अब ये मेरा प्लेन है, राइट, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं एंड LMN अगर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OM यानी नॉर्मल, नॉर्मल के लिए हम n लेटर यूज करेंगे। इसके बाद में डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल क्या है, LMN यानी OM के डायरेक्शन कोसाइंस। O यानी ओरिजिन, O यानी क्या है, ओरिजिन। सो अब पहले हम डायरेक्शन रेशोज देखेंगे। डायरेक्शन रेशोज ऑफ OM यानी परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, उसके डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, दैट इज xyz। एंड डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OM, OM के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, x अपॉन। अब इस लेंथ क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। सो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज व्हाट, p। सो हियर लेंथ ऑफ OM इज व्हाट, p। ओके, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस होंगे x बाय p, y बाय p एंड z बाय p। r अगर डिस्टेंस होता है तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हम लिखते हैं, x बाय r, y बाय r, z बाय r। सो हियर लेंथ इज p, सो इट इज डायरेक्शन कोसाइंस आर x बाय p, y बाय p, z बाय p। But these are the direction cosines of OM, but here direction cosines of OM are denoted by LMN. So this is L, this is M, and this is L. So therefore P point has coordinates, sorry P no, M point, that is the foot of the perpendicular. So foot of the perpendicular के coordinates क्या है, x y z। So x equal to क्या मिलेगा मुझे, LP, x equal to LP, y equal to MP, and z equal to NP। So please note this point, foot of the perpendicular drawn from origin to the plane is LP, MP, NP if length of the perpendicular is P and the direction cosines of that perpendicular are L, M, N। So this is the foot of the perpendicular। So all these formulas are very important। Next point हम discuss करेंगे, second point। सभी फॉर्मूले आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।
all the formulas are very important for MHT CT of this topic plane. अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point A whose position vector is A bar and perpendicular to a non-zero vector n bar is. Vector equation of plane passing through a point A and perpendicular to a non-zero vector n bar is. ये भी formula most of the times यही formula use होता है. So this is very famous formula in the topic to find, and this is the basic formula. इसी formula से आगे के plane के equation के तैयार होते हैं. So vector equation of the plane passing through the point A. This is the point A whose position vector is A bar and plane is perpendicular to this vector n bar. तो ये normal vector है. तो इस plane का equation क्या? So let P be any point on the plane whose position vector is r bar. So this AP vector is in the plane. AP vector is in the plane, and therefore this AP vector will be perpendicular to n vector. AP vector will be perpendicular to n vector. N vector is normal to the plane. AP vector lies in the plane. Any line lies in the plane is perpendicular to normal. So therefore, as these two vectors are perpendicular, their dot product will be 0, and AP vector in terms of position vector, P point का position vector r minus A point का position vector A dot n equal to 0. So this becomes r bar r vector dot n vector equal to r dot n minus A dot n equal to r dot n equal to क्या होगा A dot n. So this is the equation of the plane. Vector equation of the plane passing through the point and perpendicular to non-zero vector n bar is. क्या फॉर्मूला मिला है? r bar dot n bar equal to a bar dot n bar. ओके, तो r bar dot n bar equal to a bar dot n bar. This is a scalar. This is what? Scalar dot product है. Scalar product है तो ये कोई scalar होगा. तो इस प्लेन को हम इस तरह से लिख सकते हैं r vector dot n vector equal to d. R vector dot या P scalar consider कीजिए. Let this is a P is a scalar. So where P is A dot n. P क्या होता है? A dot n. So this is the vector equation of the plane passing through the point A and perpendicular to vector n bar is r bar dot n bar equal to A bar dot n bar. अब if the plane is passing through origin and perpendicular to vector n bar, तो उसका भी फॉर्मूला आप नोट कीजिए. वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन. अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन है एंड परपेंडिकुलर टू नॉन जीरो वेक्टर n वेक्टर है तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? पासिंग थ्रू ओरिजिन है, यहाँ पे पासिंग थ्रू पॉइंट ए है. सो इस ए वेक्टर को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा जीरो वेक्टर से पासिंग थ्रू ओरिजिन. सो जीरो वेक्टर डॉट n वेक्टर विल बी जीरो. सो इन दैट केस इक्वेशन ऑफ प्लेन विल बी r bar dot n bar equal to 0. सो इसे आप नोट कीजिए. वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू नॉन जीरो वेक्टर n bar इज r bar dot n bar equal to 0. ओके, अब इस वेक्टर इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म में कैसा कन्वर्ट कर सकते हैं? आप प्लीज सभी फॉर्मूले नोट करते जाइए. नॉर्मल फॉर्म ऑफ equation r bar dot n bar equal to p, where p is what? A dot n. So this is the equation of the plane. इसका हमें नॉर्मल फॉर्म तैयार करने का है. सो नॉर्मल फॉर्म क्या था मेरा? r bar dot n कैप इक्वल टू p. r bar dot n कैप इक्वल टू p. तो नॉर्मल फॉर्म में r bar dot यूनिट वेक्टर होता है. व्हाट इज दिस? यूनिट वेक्टर. तो यहाँ पे भी मुझे यूनिट वेक्टर लाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम मॉड ऑफ n बार से डिवाइड करना पड़ेगा. सो दिस विल बिकम r बार डॉट n बार अपॉन मॉड ऑफ n बार इक्वल टू p डॉट n बार.
Now this becomes r bar dot n cap. R bar dot n cap equal to p upon mod of n. लेकिन हम स्केलर ही चेंज कर देते हैं, p डबल होगा तो इसको d कंसिडर करते हैं, सो d अपॉन mod of n. सो ये हो गया उसका नॉर्मल फॉर्म. सो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन r bar dot n bar equal to d from origin is. अब इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा? ये प्लेन हमने नॉर्मल फॉर्म में इस तरह से लिखा है, बोथ इक्वेशंस आर सेम. सो दिस बिकम्स r bar dot n cap इक्वल टू p. तो यहाँ पे p होता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन. सो दिस p इज इक्वल टू d अपॉन मॉड ऑफ n bar. Therefore, length of the perpendicular of the plane from origin is d upon mod of n bar. Okay, so write down all these formula is important. Now this is the vector equation of the plane passing through the point and perpendicular to vector n bar. अब इसका हम कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे. Now we will see the Cartesian form of the plane passing through the point A and perpendicular to non-zero vector n bar. उसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? अब हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ओके, सो प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए. सो लेट ए पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स passing through the point A x1, y1, z1. Let P be P x y z be any point on the plane. P x y z P any point on the plane. Any point on the plane. Okay. तो मेरा ये फार्मूला है r bar dot n bar equal to p and let direction ratios of n bar are abc. अगर abc वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज abc है, देन n bar वेक्टर मुझे मिलेगा ai प्लस bj प्लस. तो इसी वेक्टर इक्वेशन से मैं कार्टेशियन फॉर्म तैयार करता हूँ. r bar dot n bar इक्वल टू a bar dot n bar. r bar इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट. इस पॉइंट p का पोजीशन वेक्टर क्या है? r bar. सो r bar वेक्टर को हम लिखेंगे xi प्लस yj प्लस zk डॉट. अब n वेक्टर देखिए, n वेक्टर क्या है? ai प्लस bj प्लस ck इक्वल टू a डॉट n. अब इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? a वेक्टर. तो ये वेक्टर क्या मिलेगा? x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k डॉट. फिर से n वेक्टर. तो n वेक्टर क्या है? ai प्लस bj प्लस. तो लेफ्ट हैंड साइड का डॉट प्रोडक्ट मिलेगा ax प्लस by प्लस cz. राइट हैंड साइड में मिलेगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1. सो ax माइनस ax1 a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू by माइनस by1 b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0. सो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन. एक इस प्लेन का इक्वेशन उस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर abc. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point x1 y1 z1. This is the equation of the plane passing through the point x1 y1 z1 and abc as direction ratios of normal. If the plane is passing through the point x1 y1 z1 and उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज अगर abc है, तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इक्वल टू 0. तो ये होगा कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट a and perpendicular to non-zero vector n bar is r bar dot n bar equal to a bar dot n bar. passing through origin है तो r bar dot n equal to 0. इसका ओरिजिन से डिस्टेंस होता है a डॉट n, यानी राइट साइड में जो कोई स्केलर है d अपॉन मॉड ऑफ n bar. So this is the second formula of the
प्लेन। अब इस थर्ड इक्वेशन देखेंगे हम, जनरल इक्वेशन। थर्ड फॉर्म ऑफ द प्लेन इज जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. That is also very very important. Third form of the equation of the plane is general equation of the plane. Third point, general equation of plane. So plane का general equation होता है ax plus by plus cz plus d equal to 0. जनरली हम प्लेन का इक्वेशन इस फॉर्म में लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0. अब इस प्लेन में ए बी सी क्या होते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज क्या होते हैं, नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है. तो इस प्लेन को हम नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे. सो हियर ए बी सी आर, हियर ए बी सी होते हैं डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल. कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल. अब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल क्या है, सो ए बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. These are what? These are what? Direction cosines of normal. In this equation of plane ABC are direction ratios of normal. A by root of B by root of C by root of A square plus B square plus C square होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल. क्योंकि इस इक्वेशन को अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म में लिखने का है, अगर मुझे इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखने का है, तो इसका नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, A बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स, बी बाय रूट ऑफ इंटू वाई, सी बाय रूट ऑफ इंटू जेड इक्वल टू माइनस टी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस. अगर इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करता हूँ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, तो ये बन जाता है नॉर्मल फॉर्म. ए बाय रूट ऑफ इंटू एक्स, बी बाय रूट ऑफ इंटू वाई, सी बाय रूट ऑफ इंटू जेड इक्वल टू माइनस डी बाय रूट ऑफ दिस. अगर ये नॉर्मल फॉर्म है, अगर ये नॉर्मल फॉर्म है, so this is what Lx plus My plus Mz equal to P. L and N are direction cosines of the normal, and P is what? Length of the perpendicular from origin. तो इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, that mod of minus d बाय mod of d लिखो या माइनस d लिखो, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. दिस इज व्हाट? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. ओके, सो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने के हैं. अगर किसी प्लेन को आपको नॉर्मल फॉर्म में लिखने का है, सो डिवाइड दैट इक्वेशन बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर. तो इससे आपका नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगा. अगर ये नॉर्मल फॉर्म है तो राइट साइड का नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. सो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन क्या है, माइनस डी बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. एंड दिस इज एल एम एन, दिस इज एल, दिस इज एम, एंड दिस इज एन. देयरफॉर दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, and ABC, that is the coefficient of x, y, z, are direction ratios of the normal to the plane. So this was very very important point, general form. Next हम discuss करेंगे next form of the equation of the plane. Next इसमें वेक्टर इक्वेशन के लिए हमें क्या दिया है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट A. वेक्टर इक्वेशन ऑफ plane passing through point A whose position vector is A bar. सभी फॉर्मूलेज आप अच्छी तरह से नोट कीजिए. नाउ वी आर गोइंग टू सी अ नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड पैरेलल टू नॉन जीरो वेक्टर्स B and C is. ओके, तो देखिए अगर मुझे
ए प्लेन, दिस प्लेन इज पैरेलल टू दिस टू वेक्टर्स बी एंड सी। प्लेन में जितने वेक्टर्स होते हैं वो सभी वेक्टर्स प्लेन को पैरेलल होते हैं। ऑल द लाइंस लाइंग इन द प्लेन आर पैरेलल टू द प्लेन। सो दिस टू वेक्टर्स आर इन द प्लेन, इट मीन्स दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू द प्लेन and plane is passing through this point A. Plane is passing through this point A, position vector is A bar. अगर B और C प्लेन को पैरेलल है, then plane is perpendicular to n वेक्टर। तो यहाँ पे n वेक्टर क्या होगा? B क्रॉस, because B cross C vector is perpendicular to B and C, but B and C are parallel to the plane. Therefore, B cross C is perpendicular to the plane. So B cross C is the normal vector. तो मेरा जो ओरिजिनल फॉर्मूला है r बार डॉट n बार इक्वल टू a बार डॉट n बार, इसको मुझे n वेक्टर से n वेक्टर को रिप्लेस करने का है B क्रॉस C से। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट n पैरेलल टू वेक्टर्स B एंड C इज व्हाट? r बार डॉट, यहाँ पे n वेक्टर को क्या रिप्लेस करने का है? B क्रॉस C। सो इट इज r डॉट B क्रॉस C इक्वल टू a डॉट n था तो ये बनेगा a डॉट B क्रॉस C। सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग टू द पॉइंट A एंड पैरेलल टू वेक्टर B एंड C। इसको हम r माइनस a डॉट, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कीजिए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं r माइनस a डॉट B क्रॉस C इक्वल टू 0। And this is also the box product of, this is also the box product of r minus a b c equal to 0। तो तीनों इक्वेशन सेम। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग टू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू नॉन जीरो वेक्टर्स b एंड c r डॉट b क्रॉस c इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c, यानी r माइनस a डॉट b क्रॉस c, यानी r माइनस a b एंड c का बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। सो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point A and parallel to vector B and C। अब इसका पैरामीट्रिक फॉर्म, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका हम देखेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट A एंड पैरेलल टू वेक्टर B एंड C इज, वो इक्वेशन होता है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स c वेक्टर, where lambda and mu are parameters या कोई भी स्केलर्स हो सकते हैं। ओके, सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट A and parallel to vector B and C is r vector equal to a vector plus lambda times b vector plus mu times c। या किसी भी ऐसा इक्वेशन आपको दिखता है तो आप इससे समझ आना चाहिए कि ये वेक्टर किस, ए प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है और इस प्लेन को पैरेलल वेक्टर्स क्या है। फॉर एग्जांपल आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस जे प्लस म्यू टाइम्स आई प्लस। इस वेक्टर को, इस इक्वेशन को देख के, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन दिस फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो इस दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये प्लेन किस पॉइंट से पास हो रहा है? आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर। दोनों इक्वेशन सेम है, कंपेयर कर सकते हैं। ए वेक्टर क्या है? आई प्लस जे। इट मीन्स दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 0। दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 0 एंड दिस प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन्स। This plane is parallel to the lines whose direction ratios are 3 1 0, 3 1 0 and 1 0 1, 1 0 1। तो इस टाइप का अगर आपको इक्वेशन दिखता है तो उस इक्वेशन को आप इस इक्वेशन से कंपेयर करके प्लेन जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जान सकते हो, और प्लेन जिन दो वेक्टर्स को पैरेलल है उन दो वेक्टर्स को भी जान सकते हो या उनके डायरेक्शन कोसाइंस भी आप लिख सकते हो। सो दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर b क्रॉस c r डॉट b क्रॉस c इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c। दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म। अब इसको ही कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने का है, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म देखिए, इसका कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन
कार्टेशियन फॉर्म, तो इसका कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट लिखता हूँ। डिटर्मिनेंट होता है x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 is equal to 0. Here this is the equation of plane. यहाँ पे मैं अच्छी तरह से समझाता हूँ. This is the equation of plane. Please note this. This is equation of plane passing through point x1 y1 z1. This is the equation of the plane passing through the point x1 y1 z1 and parallel to the lines, whose direction ratios are this is the plane passing through the point x1 y1 z1, and this plane is parallel to the lines whose direction ratios are a1 b1 c1 and a2 b2 c2. a1 b1 c1 and a2 b2 c2. तो इसमें तीन इक्वेशन हमने देखे हैं. वन इज द वेक्टर इक्वेशन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी एंड सी. ये वेक्टर इक्वेशन है. उस वेक्टर इक्वेशन का पैरामेट्रिक फॉर्म है. एंड दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 and parallel to lines whose direction ratios are a1 b1 c1 and a2 b2 c2. So this was the formula number 4. Next we will see the next formula number 5 of the topic plane. उसमें हमें देखने का है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स. वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स. सो हियर नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 3 non-collinear points. A whose position vector is A, B whose position vector is B, and third point is C whose position vector is C is. अब 3 पॉइंट दिए हैं. प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स. सो हियर द प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स A, B and C. इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? अगर ये 3 पॉइंट प्लेन में है तो AB वेक्टर और AC वेक्टर प्लेन में ही होंगे. सो AB एंड AC आर पैरेलल टू द प्लेन. सो इफ AB एंड AC आर पैरेलल टू द प्लेन देन नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? AB क्रॉस AC. नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? AB क्रॉस AC. अब ओरिजिनल इक्वेशन के पास आते हैं. जैसे मैंने बोला था वो जो इक्वेशन है r बार डॉट n बार, this is the very important formula of the plane. तो यहाँ पे n वेक्टर क्या है? AB क्रॉस AC. तो n वेक्टर को हम रिप्लेस करेंगे AB क्रॉस AC से. पासिंग थ्रू द पॉइंट A है ही. सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ABC इज व्हाट? n को रिप्लेस करने का है AB क्रॉस AC. सो r बार वेक्टर r डॉट AB क्रॉस AC इक्वल टू A डॉट AB cross AC. So this is the vector equation of the plane passing through 3 points ABC. R dot AB cross AC equal to A dot AB cross AC. अब इसका कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं. इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं R माइनस A डॉट AB क्रॉस AC इक्वल टू 0. इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ R माइनस A, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ R माइनस ए, ए बी यानी B माइनस ए, ए सी यानी C माइनस ए इक्वल टू 0. सो दिस और दिस और दिस ऑल आर द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ABC. अब इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? अगर मुझे 3 पॉइंट्स देते हैं, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हैं x2 y2 z2, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हैं x3 y3 z3, तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? इसी को हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. r बार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट P ऑन द प्लेन. तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं x y z कंसिडर करता हूँ
सो r माइनस ए एक्स वाई जेड माइनस x1 y1 z1 हो जाएगा। तो प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, r माइनस ए यानी फर्स्ट रो मुझे लिखना पड़ेगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, b माइनस ए यानी क्या होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अब c माइनस ए थर्ड रो में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट c माइनस ए थर्ड रो में फिर क्या आएगी कोएफिशिएंट्स x3 माइनस x1 y3 minus y1 z3 minus z1 equal to 0. So this is the Cartesian form of the plane passing through 3 points x1 y1 z1 and x2 y2 z2, and this is the vector equation of the plane which is passing through 3 points ABC. R dot AB cross AC equal to A dot AB cross AC. So write all the formulas properly. समझ लीजिए, all the formulas are very simple और सभी फॉर्मूलेज हम इस फॉर्मूले से तैयार कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक फार्मूला। सो दिस इज द 5th पॉइंट एंड नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट 6th पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ व्हाट, कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन के इक्वेशन क्या होते हैं, नेक्स्ट 6th पॉइंट हम देखेंगे, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। So equation of YZ plane, equation of XZ plane is, and equation of XY plane is। तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन्स, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स, तो ये मेरे कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, x axis, y axis, z axis, this is xy plane, this is yz plane, this is xz। so xy plane पे हमेशा z कोऑर्डिनेट 0 होता है, xy प्लेन पे हमेशा z कोऑर्डिनेट 0 होता है, yz प्लेन पे किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और xz प्लेन पे किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0। so these are the coordinates on the of any point on xy plane, yz plane and xz। इसी से इक्वेशन बनते हैं। yz प्लेन पे हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो yz प्लेन का इक्वेशन हो गया x इक्वल टू 0, बिकॉज एवरी पॉइंट ऑन दैट प्लेन हैज x कोऑर्डिनेट 0। xz प्लेन पे हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू 0, और xy प्लेन पे हमेशा z कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो xy प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, z इक्वल टू 0। अगर इसे हमें वेक्टर फॉर्म में लिखने का है, तो yz प्लेन का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, r बार डॉट n बार इक्वल टू 0 होगा। 0 यानी पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो सभी प्लेन ओरिजिन से पास हो रहे हैं, सो राइट साइड में हमें 0 लेना पड़ेगा। अब इस प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, आपको yz प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर, yz प्लेन को x एक्सिस परपेंडिकुलर है, yz प्लेन को x एक्सिस परपेंडिकुलर है, xy प्लेन को z एक्सिस परपेंडिकुलर है, xz प्लेन को y एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो yz प्लेन को x एक्सिस परपेंडिकुलर है, यानी कौन सा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, i वेक्टर। तो इसका वेक्टर इक्वेशन बनेगा r डॉट i इक्वल टू 0 एंड r डॉट i इक्वल टू 0 इज सेम एज x इक्वल टू 0। ओके, तो xz प्लेन का इक्वेशन क्या बनेगा, r डॉट xz प्लेन को क्या परपेंडिकुलर है, y एक्सिस, यानी कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर है, j वेक्टर। सो r डॉट j इक्वल टू 0, सो r डॉट j इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 0, एंड xy प्लेन का वेक्टर इक्वेशन मिलेगा r डॉट k इक्वल टू 0, सो r डॉट k इक्वल टू 0 मीन्स z इक्वल टू 0। सो दीज आर द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स xy प्लेन, yz प्लेन एंड xz प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म इन वेक्टर फॉर्म। अब इसमें हमें देखने का है, अगर प्लेन किसी प्लेन को पैरेलल है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स को पैरेलल प्लेन के इक्वेशन क्या होते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन, नोट दिस पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through point ABC and parallel to YZ plane is parallel to XZ plane
is parallel to xy plane is। अब देखिए, अब इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लीजिए। इससे भी आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC एंड पैरेलल टू YZ XZ प्लेन एंड XY प्लेन, तो प्लेन का इक्वेशन क्या है? सो हियर स्टूडेंट्स, I will draw this coordinate planes. So this is y-axis, this is x-axis, this is z-axis, this is origin. Okay, ये XY प्लेन है। अब देखिए दिस प्लेन and let this point as coordinates ABC. अब ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज पैरेलल टू YZ, दिस प्लेन इज पैरेलल टू व्हाट? YZ। दिस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? अगर प्लेन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ABC, तो ये पॉइंट देखिए, दिस पॉइंट लाइज ऑन XY प्लेन, इसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा। दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट 0 होंगे। दिस पॉइंट लाइज इन XZ प्लेन, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। x कोऑर्डिनेट देखिए a, x कोऑर्डिनेट a, x कोऑर्डिनेट a, x कोऑर्डिनेट a। इसका मतलब इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट होंगे सभी का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? a होगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ दिस प्लेन इज x इक्वल टू, एंड दिस प्लेन इज पैरेलल टू व्हाट? YZ प्लेन। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ABC एंड पैरेलल टू YZ प्लेन होगा x इक्वल टू a। सिमिलर, अगर प्लेन XZ प्लेन को पैरेलल होता है, तो XZ प्लेन को पैरेलल प्लेन ये है, ये प्लेन देखिए। इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? इस प्लेन का इक्वेशन होगा y इक्वल टू, और XY प्लेन को पैरेलल प्लेन अगर ABC पॉइंट से पास होता है, तो उसका इक्वेशन होगा z इक्वल टू। ओके, सो दीज आर 3 इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेज ऑफ द प्लेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दिया है 2 - 3 - 1, इस पॉइंट से अगर प्लेन पास होता है एंड इफ द प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? YZ प्लेन को अगर पैरेलल है तो उसका इक्वेशन होगा x इक्वल टू 2, एंड प्लेन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू XZ प्लेन, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू b, y इक्वल टू -3, एंड द प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट इज पैरेलल टू XY प्लेन, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? z इक्वल टू c, so z equal to -1. So this is the plane parallel to YZ plane, this is the plane parallel to XZ plane, and this is the plane parallel to XY plane passing to the point 2 -3 -1. So students, हम आए हैं फॉर्मूला नंबर 6 तक। 6 फॉर्मूले हमने देखे, इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स तक हमने देखे हैं। वन मोर एक छोटा सा पॉइंट मैं कवर करता हूँ, क्योंकि हमें पूरे फॉर्मूले 2 लेक्चर्स में कवर करने के। एक ही फॉर्मूला बाकी, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, 1 मिनट, इसे मैं ऊपर ही लिखता हूँ। दिस फॉर्म इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? सो हियर ये मेरे 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अगर कोई प्लेन इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, इफ द प्लेन इज इंटरसेक्टिंग ऑल द 3 एक्सेस एट द पॉइंट A, B, C, and if A has coordinates A 0 0, B point has coordinates 0 B 0, C point has coordinates 0 0 C, then this equation of the plane is x upon A plus y upon B plus z by C equal to 1. So this is the equation of the plane in intercept form. If the plane cuts x axis at A 0 0, y axis at 0 B 0, z axis at 0 0 C, then this is the equation of the plane in intercept form. यहाँ पे x intercept of the plane, x intercept of the plane क्या है? A, y intercept of the plane क्या है? B, and z intercept of the plane क्या है? इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन हैविंग x इंटरसेप्ट A, y इंटरसेप्ट B and z इंटरसेप्ट C is x upon A plus y upon B plus z upon C equal to 1, और
Equation of the plane passing through 3 points A 0 0 0 B 0 and 0 0 C is x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1. If you are given the equation 2x plus y plus 3z equal to 6, तो इस प्लेन का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट क्या होगा? If we divide this equation by x, we get x upon 3 plus y upon 6 plus z upon 2 equal to 1. So x intercept of this plane is 3, y intercept of this plane is 6, and z intercept of this plane is 2. Okay, so this is the intercept form of the plane x by a plus y by 2 plus z by c equal to 1. So students, now we'll stop here. इतने lectures इस topic, इतने सारे formulae हमने इस lecture में cover किए हैं. In the next lecture, we will discuss the remaining formulas of the topic plane for MST CT. All the formulas are very important. आप प्लीज़ इन सभी फॉर्मूले को अच्छी तरह से देखिए, नोट कीजिए, ताकि आप इन सभी फॉर्मूलेज को प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज कर सकें. सो ओके स्टूडेंट्स, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर.